Hello guys, welcome back to my channel Learn Civil Engineering. So today we are going to discuss the topic that is strength of material. Okay, this is lecture number 1. In this video we are going to discuss about the concept of stresses, that means the fundamental quantities. Okay, so generally we have to discuss in this video mechanical properties of materials, loads, stress, strain and Hooke's law. So let's get started. So first of all we have to know what is mechanics actually, because we are going to study strength of material. That means its other terms it is named as solid mechanics. Okay, so basically we have to know what is mechanics first. Okay, mechanics means it is the branch of science which deals with the study of forces and their effects on bodies. Okay, so there are three mechanics you have seen in the figure. One is engineer mechanics, solid mechanics and fluid mechanics. That means different bodies we are studying the effect of forces. Okay, if you are studying the effect of forces on rigid bodies means the body which is fixed. Okay, no movement takes place in the body. Okay, we are applying the forces on the body and we are studying the effect of forces. Okay, in case of solid mechanics, what is solid mechanics? Solid mechanics is the branch of science which deals with the study of forces and their effects on deformable bodies. That means if you apply force on a body, that body will deform. Okay, it may be your longitudinal deformation or it may be your transverse deformation. Okay, so next, if you talk about study of effect of forces on water bodies, okay, if you are, then that is known as your what, fluid mechanics. That means different properties of fluid we have to study, like viscosity. Okay, viscosity. Okay, different properties. Okay, so next, mechanical properties of material. If you are talking about solid mechanics, that means we must deals with the materials like your what you say, metal bodies. Okay, different materials. So we have to study 8 important properties of materials. Okay, so first one is your elasticity, plasticity, ductility, brittleness, malleability, toughness, hardness and strength. So let's discuss the topic in detail. So first one is your elasticity. Basically the ability of an object or material to resume its normal shape after being stretched or compressed. मतलब है कि हम यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो बॉडी होगा वो क्या होगा, मे बी स्ट्रेच्ड हो सकता है, मतलब इलोंगेट हो सकता है इफ़ यू अप्लाई पुल ऑन द बॉडी, देन इफ़ यू अप्लाई पुश ऑन द बॉडी देन इट मे बी कंप्रेस्ड. ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स हम बॉडी को जब पुल अप्लाई करेंगे बॉडी क्या करेगा, इलोंगेट होगा. दैट मीन्स इफ़ यू रिमूव द पुल आफ्टरवर्ड्स द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन. बॉडी को हम खींचेंगे पुल अप्लाई करके, तो उसके बाद क्या होगा, जब पुल हम छोड़ देंगे बॉडी को, मतलब रिलीज़ कर देंगे बोथ साइड से, वो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन में लौट आएगा. ओके, that property is called as elasticity. Next one is your plasticity. It is the quality of being easily shaped or molded. So plasticity का मतलब है हम किसी भी बॉडी को एक शेप दे सकते हैं. ओके, एक शेप हम दे सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं. दैट मीन्स वी कैन मोल्ड ए पर्टिकुलर मटेरियल टू एनी शेप. That is known as your plasticity property. Okay, next one is your ductility. Okay, ductility is a property of a solid material which indicates that how easily a material gets deformed under tensile stresses. Okay, ductility का मीनिंग होता है कि हम किसी भी मटेरियल को वेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हमारा कॉपर एल्युमिनियम जो वेयर होता है ना, वो किस वजह से होता है ना, जो एल्युमिनियम कॉपर का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से होता है. सो डक्टिलिटी बेसिकली क्या होता है ना, हम किसी भी मटेरियल को किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं.
Okay, ductility is often categorized by the ability of material to get stretched into a wear by pulling or drawing. Okay, next one is a brittleness. Brittleness of a material indicate that how easily it gets fractured when it is subjected to a force or load. ओके, ब्रिटलनेस क्या होता है ना, हम जो भी मटेरियल के ऊपर हम बॉडी मतलब बॉडी के ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे. फोर्स एक्सर्ट करने के बाद क्या होगा, जब जो बॉडी होगा वो कुछ हद तक क्या करेगा, फोर्स को रजिस्ट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा. जो फेलियर होगा वो फेलियर सडन होगा. दैट मीन्स इट विल नॉट गिव सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फेलियर. वो इमीडिएट फेलियर हो जाएगा. तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, ब्रिटलनेस कहते हैं. ओके, जनरली ब्रिटल मटेरियल तुम्हारा क्या होता है, जो हमारा आरसीसी नहीं होता है, आरसीसी डक्टाइल होता है. जो हमारा पीसीसी होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट. ओके, और तुम्हारा कास्ट आयरन, ये सब क्या होता है ना, ब्रिटल मटेरियल होता है. नेक्स्ट वन इज़ योर malleability. Okay, so malleability is a property of solid materials which indicates that how easily a material gets deformed under compressive stress. Okay, it may be tensile, or you can say malleability is often characterized by the ability of material to be formed in the form of a thin sheet by hammering or rolling. That means जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है ना, हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो मेटल बॉडी को क्या करते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना. डक्टिलिटी क्या होता है ना, हम मेटल बॉडीज़ को क्या करते हैं ना, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और मेलेबिलिटी जो होता है हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हो गया टफनेस. ओके, it is the ability of material to absorb the energy and get plastically deformed without fracturing. जो टफनेस मतलब कि हम बॉडी के ऊपर फोर्स डालेंगे तो बॉडी क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट का डिफॉर्मेशन होगा, और क्या करेगा ना, बॉडी जो होगा वो फोर्स अब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, इन द फॉर्म ऑफ योर एनर्जी. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर हार्डनेस. हार्डनेस इज the ability of a material to resist permanent shape change due to external stresses. ओके, जो हार्डनेस हमारा होता है वो क्या होता है ना, जो बॉडी के ऊपर हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा ना, परमानेंट जो शेप चेंज होता है बॉडी का कोई भी इलोंगेशन होने नहीं देगा, और क्या करेगा ना, जो फोर्स होगा उसको काउंटरएक्ट करेगा. जो भी मैंने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को दिया था बॉडी को, वो क्या करेगा, काउंटरएक्ट करेगा बॉडी. ओके, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मटेरियल का हार्डनेस कहते हैं. Next one is your strength. So basically strength is the property of a material which opposes the deformation or breakdown of material in the presence of external forces or load. Okay, किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेंथ हम कहते हैं क्या ना, जो भी फोर्स हम उसके ऊपर डाले वो क्या करेगा ना, इजीली उसको विथस्टैंड कर लेगा. ओके, काउंटरएक्ट कर लेगा. जैसे कि हम जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल में जो ब्रिक का जो स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हम क्या करते हैं ना, ब्रिक के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स जो होता है वो अप्लाई करते हैं. वो अप्लाई करने से क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है ना, ब्रिक का ब्रेकडाउन होता है. दैट मीन्स इट विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक. ओके, सो पर्टिकुलर मटेरियल जो होता है हमारा, उसका डिफरेंट स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ योर लोड. ओके, सो लोड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली लोड क्या होता है, लोड में बी डिफाइंड एज ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन ए बॉडी. जो लोड हमारा नथिंग बट फोर्स, इट इज़ जनरली डिनोटेड एज P. ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर लोड में बी क्लासिफाइड एज, सो जो लोड हमारा होता है बट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. सो फर्स्ट वन इज़ योर डेड लोड और सेल्फ वेट. सेकेंड वन इज़ योर लाइव लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड. थर्ड वन इज़ योर अर्थक्वेक लोड. फोर्थ वन इज़ योर स्नो लोड. ओके, बेसिकली जो डेड लोड होता है हमारा वो सेल्फ वेट होता है. किसी भी बॉडी का डेड लोड क्या होता है ना, उसका सेल्फ वेट होता है. सेकेंड वन जो लाइव लोड होता है वो फ्लक्चुएटिंग लोड होता है. दैट मीन्स वो लोड वेरी करता है, कंडीशन के हिसाब से वो क्या करता है ना, वेरी करता है. थर्ड जो लोड होता है वो अर्थक्वेक लोड होता है. जैसे कि हमारा कोई अर्थक्वेक आया तो उसका जो इंटेंसिटी होता है, लोड इंटेंसिटी, वो क्या होता है ना, अर्थक्वेक लोड इंटेंसिटी में कैलकुलेट किया जाता है. जो फोर्थ वन होता है जो स्नो लोड होता है, वो जनरली क्या होता है ना, कोल्ड रीजन जो होता है
पोल एरियाज़ में देखने को मिलता है, वो लोड को हम स्नो लोड कहते हैं। सो जो हमारा इस स्ट्रेंथ ऑफ टॉपिक का मटेरियल टॉपिक है, तो उसमें हम बेसिकली जो ये 4 लोड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ योर पॉइंट लोड, सेकेंड जो होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड वन हमारा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और ये जो फोर्थ वन है इसका नाम है ट्रायंगुलर लोड। ओके, सो लेट अस डिस्कस ईच लोड। इस लोड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन जो फिगर दिख रहा है ये क्या होता है ना, यह हमारा पॉइंट लोड है। ओके, यू कैन डायरेक्टली सी है पॉइंट लोड फर्स्ट केस में एक सिंपली सेपरेटेड बीम है, उसके ऊपर क्या है पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है W1 W2 W3। ओके, सो ये बेसिकली क्या होता है ना, पॉइंट लोड एक पॉइंट पे एक्ट करता है, पॉइंट लोड उसे बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अब देख सकते हैं फिगर में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट मीन्स द लोड विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पान। ओके, स्पान में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे लिखा है W पर मीटर। ओके, W न्यूटन पर मीटर, दैट मीन्स W न्यूटन का फोर्स पूरा स्पान में लगा है, जितना मीटर पर स्पान है उसके ऊपर लगा है। नेक्स्ट वन इज़ योर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ये फिगर में पूरा शो हो रहा है। एक साइड में क्या होगा ना, लोड जो लोडिंग इंटेंसिटी है वो 0 होता है, और अदर साइड में क्या होता है मैक्सिमम होता है। सो इसे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। और इन दोनों का जब हम कम्बिनेशन कर देंगे, दैट मीन्स इस साइड से जो है ये पोर्शन और राइट साइड में ऐसा एक इसका जब रिवर्स बोल देंगे, जो मिररिंग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ट्रायंगुलर लोड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो ट्रायंगुलर लोड क्या होगा ना, दोनों साइड पे क्या होगा ना, हमारा जो लोडिंग कंडीशन है वो क्या होगा ना 0 होगा, और बीच में जो होगा वहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है ना, स्ट्रेस रफली हम समझेंगे तो क्या होगा ना, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज स्ट्रेस। ओके, सो किसी भी बॉडी पर हम जब स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके ऊपर फोर्स लगने से क्या होगा ना, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। सो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सिग्मा से। ओके, सो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, द फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। यू कैन सी द फिगर डायरेक्टली हियर। ओके, कैसे लोड एक्ट कर रहा है, एक बॉडी के सरफेस के ऊपर लोड लग रहा है, तो स्ट्रेस क्या होगा ना, जो लोड डिवाइडेड बाय क्या होगा ना, हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस एरिया पे वो लोड लग रहा है। ओके, सो बेसिकली इसका यूनिट थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ आगे जब प्रॉब्लम हम करेंगे तो उसमें यूज़ होगा। ओके, बेसिकली स्ट्रेस कैसे डिनोट करेंगे ना, उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर mm²। ओके, और वेरियस यूनिट्स हो सकता है उसका, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, MPa में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और GPa में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं MPa और GPa क्या होता है। MPa का क्या होगा फुल फॉर्म जो हम बोलेंगे उसको मेगा पास्कल बोलेंगे। सो पास्कल बेसिकली क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, सो जो GPa हमारा होता है वो क्या हो जाएगा गीगा पास्कल, दैट मीन्स 10⁹ ओके, सो बेसिकली हम जब प्रॉब्लम में करेंगे तो यूनिफॉर्म यूनिट यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम में, न्यूटन पर mm² में हम रखते हैं, और यू कैन से MPa। ओके, सो हम जब प्रॉब्लम करेंगे इसका यूनिट कन्वर्शन पूरा एकदम अच्छे से करेंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, 4th पॉइंट पे लिखा है SI यूनिट इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm²। सो ये हमारा SI यूनिट है स्ट्रेस के लिए। तो ये फिगर में आप क्रॉस इजीली देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। सो वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर देयर। सो टाइप 1 इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं थोड़ा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1 में आएगा हमारा सिंपल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, और हमारा शेयर आएगा। सो बेसिकली जो सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है हमारा, वो क्या होता है ना, हमारा जो फर्स्ट जब डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस टेंशन के लिए डिस्कस करेंगे। टेंशन क्या होगा, इफ़ 2 इक्वल और अपोजिट पुल्स अप्लाइड। ओके, दैट मीन्स हम एक बॉडी के ऊपर 2 इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे और राइट साइड में अप्लाई करेंगे, तो ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स द बॉडी विल व्हाट इलोंगेट।
ओके, जो पुल हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, इलोंगेट होगा, एंड दैट नेचर विल बी द स्ट्रेस नेचर विल बी व्हाट, टेंसाइल. नेक्स्ट वन इज योर हमारा कंप्रेशन. इफ़ टू इक्वल और अपोजिट पुशेस आर अप्लाइड, जो कि हम दो एक बॉडी के बोथ साइड पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे हम जब पुश अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा. सो कंप्रेस होने पे क्या होगा ना, कंप्रेशन होगा. तो एंड दैट स्ट्रेस विल बी नोन एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस. ओके, देन शियर कैसे होगा, इफ़ दोनों साइड बॉडी क्या होगा ना, एक एक बॉडी के ऊपर एक दूसरा बॉडी है, तो जब हम अपोजिट साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो सरफेस के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, शियर होगा. ओके, फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, शियर होगा. सो दैट स्ट्रेस इज नोन एज अर व्हाट, शियर स्ट्रेस. नेक्स्ट वन जो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्ट्रेस, दैट मीन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. सो इसमें क्या आ जाता है ना, बेंडिंग आ जाता है और टॉर्शन आ जाता है. ओके, बेंडिंग हम डिस्कस करेंगे, हम जब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बेंडिंग कैसे होता है. ओके, सो बेंडिंग बेसिकली क्या होगा, हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, लोड डाल देंगे. सो लोड डालने के क्या होगा ना, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड देयर विल बी सम बेंडिंग मोमेंट. ओके, नाउ टोर्शन, ये कॉलम के केस में जब दोनों साइड में ऑपोजिट मोमेंट अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टॉर्शन होगा. ओके, ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होने से क्या होगा, टॉर्शन हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप थ्री में क्या हो जाता है ना, कंबाइंड स्ट्रेस, जो कि इन दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन है. ओके, टाइप 1 एंड टाइप 2 स्ट्रेसेस का. नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेन. ओके, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके, जो हमारा बॉडी के ऊपर हम जब स्ट्रेस द फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी स्ट्रेस में चला जाता है. तो स्ट्रेस होने से क्या होता है, अभी इलोंगेशन होगा. आइदर जब हम पुल अप्लाई करेंगे तो टेंसाइल होगा, टेंसाइल नेचर में होगा, दैट मीन्स व्हाट, इलोंगेशन विल बी देयर. इफ पुशेस आर अप्लाई, दैट मीन्स द बॉडी विल कंप्रेस, सो दैट देयर विल बी नेगेटिव डिक्रीमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी. ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना, पुल अप्लाई करने से, ये फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर बी में क्या होता है ना, बोथ साइड में क्या होगा ना, पुल अप्लाई हो रहा है. सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पी अमाउंट ऑफ फोर्स द बॉडी विल इलोंगेट सम अमाउंट ऑफ डेल्टा. ओके, सो दैट इज इलोंगेशन. कुछ अमाउंट का क्या होता है ना, इलोंगेशन होता है, वो एक्सियली हो रहा है. ओके, सो इसको क्या होता है ना, डेल्टा होता है. तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. सो जो भी हमारा चेंज इन लेंथ हुआ तो वो हम डिनोट कर रहे हैं क्या, डेल्टा से. ओके, देन जो हमारा ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल. सो हम मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर जो स्ट्रेन जो होता है, इप्सिलॉन से इसे डिनोट किया जाता है. इप्सिलॉन इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा बाई योर एल, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ. ओके, सो बेसिकली जो स्ट्रेन जो होता है ये हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. क्यों डायमेंशन नहीं होता ना, हमारा जो डेल्टा एल होता है वो भी एक इलोंगेशन है. सपोज डेल्टा एल इज़ 0.01 mm. ओके, और बॉडी का लेंथ है हमारा 200 mm. सो हमारा 0.01 mm डिवाइडेड बाय 200 mm. सो mm जो होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली यह क्या हो जाएगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा. ओके, सो ये रिमेंबर हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेन जो हमारा होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है. ओके, नेक्स्ट इस फिगर में आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है टेंसाइल, कंप्रेशन और शियरिंग. ओके, यू कैन सी हियर पुल इज अप्लाइड, दैट इज नोन एज योर टेंसाइल फोर्स. ओके, टेंसाइल, जो टेंसाइल स्ट्रेस होने से क्या हो जाएगा, जो हमारा स्ट्रेन भी टेंसाइल होगा. ओके, नेक्स्ट ये जो हमारा कंप्रेसिव, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेसेस विल बी देयर एज वेल एज स्ट्रेन विल बी देयर. ओके, नेक्स्ट फिगर डिनोट्स योर शियर. ओके, बोथ साइड पर देखें, एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर है, एक साइड पे एक फोर्स लग रहा है, देन अपोजिट साइड पे एक फोर्स लग रहा है. तो दोनों फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शियर हो जाएगा. ओके, नाउ दिस फिगर डिनोट्स ऑल दिस quantities, those quantities, tensile, compression, okay, shearing, torsion, bending, buckling, okay, in 3D animation. Okay, you can see here first one for tension both side pull is applied. Second one you can see here compression. Okay, both side pushes are applied, that means the body is on compression. Okay, next one is your one body is above another body. Okay, shearing, their shearing forces exist. Next one is your torsion.
Okay, column is column body is here, that means a vertical member is here, and two couples are there at both ended. Okay, that is torsion. Next one is our bending. Between two supports, one load is acting, and due to the application of load, there will be some kind of bending. Okay, next one is our buckling. Okay, buckling, you can see here a column is there, vertical member, both side force is acting. Due to the application of this force, the column is buckled. Okay, नेक्स्ट जो टेंसाइल स्ट्रेन होता है, सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा ना, मैंने पहले भी डिस्कस किया है अभी इस वीडियो पे। क्या होगा टेंसाइल स्ट्रेन, जो हम हमारा बॉडी के ऊपर जब हम टेंसाइल पुल अप्लाई करते हैं, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेंसाइल पुल देयर विल बी सम काइंड ऑफ इलोंगेशन. ओके, सपोज दैट इलोंगेशन विल बी डेल्टा. ओके, सो दैट इलोंगेशन इज व्हाट, इंक्रीजिंग इन लेंथ. इनिशियल इसका लेंथ क्या था, एल था, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पुल the elongation will be some amount what, delta. Okay, so जो delta amount of elongation was, जो initial length था L, now the length is converted to what, L plus delta. Okay, so that elongation is what, tensile in nature. Due to the application of this tensile pull, the strain induced, the strain is also known as what, tensile strain. Similarly in case of compression क्या होगा ना, हमारा both side पे push apply होगा. Due to the application of push, some amount of deformation will be there. That may be negative deformation, but some kind of deformation will be there, and that strain will be what, compressive strain. ओके, सो यहाँ पे भी वही लिखा है. सो हमारा जो मेन इनिशियल फॉर्मूला स्ट्रेन का क्या होगा, स्ट्रेन इज व्हाट, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यू कैन से चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं. ओके, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. यदि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करें, जो उसका रेशियो निकालें, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, इट इज़ बेसिकली ए कांस्टेंट. ओके, वेरियस मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. डिफरेंट मटेरियल के लिए हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो हमारा स्टील के लिए जो होता है, बेसिकली हम जब प्रॉब्लम करेंगे ये बहुत ही काम में आएगा. जो हमारा स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm². इसे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो प्रॉब्लम करेंगे वहाँ पे ये यूज़ होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू. ओके, डाटा प्रॉब्लम में गिवन होता है, लेकिन ये याद रखने से प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जो डिटेल में लिखा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, बल्क मॉडुलस जो होता है हमारा K, विच इज़ डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेन बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन. ये सब हम कांस्टेंट जो हमारा रिलेशनशिप होगा वहीं पे डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके, नेक्स्ट इज योर हुक्स लॉ. हुक्स लॉ डिफाइंड एज द लीनियर relationship between stress and strain within the elastic region. ओके, सो जो हुक्स लॉ होता है वो बेसिकली हमारा विद इन इलास्टिक लिमिट के रेंज में ही वैलिड रहता है. ओके, सो बेसिकली हम जो रिलेशन अभी डिस्कस किए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के. ओके, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रिलेशन हमें अभी देखें, सो बेसिकली हमने क्या देखा ना, हमारा जो E होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज़ द रेशियो बिटवीन योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, सो इसका रेशियो होता है. तो इसका जो रेशियो, इसमें से जब हम सिग्मा का वैल्यू निकाले, दैट मीन्स स्ट्रेस का वैल्यू, दैट विल हाउ मच, दैट विल इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. So that is the expression for your Hooke's law, and Hooke's law states that within the elastic limit the stress is proportional to strain. Okay, so elastic state क्या होता है, हमने भी डिस्कस किया था पहले. जो हमारा इलास्टिक स्टेट होता है, दैट मीन्स इफ़ वी रिमूव द लोड, ओके, द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ओके, सो
इलास्टिक रीजन के अंदर बॉडी अपना पोजीशन रिगेन कर सकता है इफ़ वी रिमूव द लोड. सो हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू द इलास्टिक लिमिट. ओके, बेसिकली ये फिगर आप देख रहे हैं. ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए. सो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक जो हमारा होता है इलास्टिक पॉइंट. सो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, ये यहाँ तक स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे कर्व हो जाता है जनरली हम जो डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो. सो ये हमारा ओरिजिन है. सो हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू दिस. So that means within elastic limit the stress is proportional to strain. Okay, so that is Hooke's law. So Hooke's law valid है किस तक ना, हमारा इलास्टिक लिमिट तक. देन उसके बाद क्या हो जाएगा, लोड इंक्रीज करने से जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा. सो प्लास्टिक स्टेट में चला जाने से क्या हो जाएगा, मटेरियल अपना पोजीशन और रिगेन नहीं कर सकता. ओके, उसके बाद डिफॉर्म होगा, देन अप टू फेलियर पॉइंट तक पहुंच जाएगा. तो कहने का मतलब है जो हुक्स लॉ है उस रीजन तक, जो हमारा इलास्टिक रीजन तक स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, इसको बेस करके हम आगे भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है. ओके, सो thanks for watching. If you like my video, share with your friends. Okay, press the bell icon so that you will get notified when I will add another video. Okay, thank you.